Hello, dear colleagues. Myself, Pailo Arora. I'm a chartered accountant by profession and also a CIA aspirant. This is my first video uh, for everyone who is pursuing the CIA, and this video is for part 2 and cover chapter first. That is, and topic is internal audit operations. So, before moving forward, I would like to share my objective behind preparing or making this video is that, as we all know, that we are all professionals and we are busy in our day-to-day lives, but to enhance skills we are also do these kinds of certifications. And for the last time preparations before the exam, we need some kind of refresher, like we from the very first stage, like if your background is chartered accountant, the chartered accountancy course, then from the background we know want some sort of last time refreshments, such last time refresher course, like that. The objective behind this video is also, when we do these kinds of certifications, we not find any kind of material available on social platform, except we have some kind of handbooks are there which we have to read on my own. So the purpose of this video is only just to brief out the chapter in a very concise manner for your last time preparation before the exam. So now let us start our first chapter, that is internal audit operation. We all know, we pass part 1, in which we studied the attribute standards. We all know what is the attribute standards as per the IIA. As per international standards for professional practice of internal audit standards, there are two forms of standards. That is, first is attribute standard and then is performance standards. In part one, we covered attribute standards, which talks about the attributes like due professional care, independence, objectivity. These are all quality standards we also covered in the attribute standards. And the series is 1000 to 1300 as shown in my screen itself. Now in the part 2, we would cover the performance standard. So in the first chapter, if you see, there is a 6 performance standards that was a part of the first chapter. I tell you how to prepare in your tips for MCQ preparation, for MCQ based examination. So if you see, I named all the standards in a table. That is first standard, which is 2000 performance standard, which talks about managing the internal audit activity. Next is 2030, that is a resource management. 2040, that is the policies and procedures. 2050 is the coordination and reliance. 2070 is the external service provider and organizational responsibility for internal auditing. And the last one is the 2100, that is the nature of work. For your benefit, I make the detailed content of the standard in a very concise manner, so that whenever you go for the examination, you just have to keep in your mind these highlighted points, and the detailed content in your mind behind these highlighted uh, lines. I will help you how to prepare. So, firstly, I take the standard 2000, that is the managing the internal audit activity. So, dear my friends, इस standard में हमें क्या बोला हुआ है? We all know who is a CAE, Chief Audit Executive, that we covered in our part first examination, which we cleared all. So, इसमें क्या बोला हुआ है? इस
चैप्टर में हम क्या समझेंगे बेसिकली कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में हमें क्या समझना है कि जो इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी है या सीएई है उसका क्या रोल है इंटरनल में ऑडिट में, हमें किस तरह से परफॉर्मेंस करनी है। हम इंटरनल ऑडिट ऑपरेशंस बोलते हैं कि हम इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, उसमें हमें क्या, जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे काम क्या है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, उसे कितने रिसोर्सेस कहाँ पर कब लेने हैं अपनी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को देखकर, अपने फ्यूचर के असाइनमेंट को देखकर, तो वो रिसोर्स प्लानिंग करना वो एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का एक पार्ट बन गया। एक पार्ट बन जाता है कि जो हमारी इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी है उसमें हमारे क्या पॉलिसीज रहेंगे, हमारे क्या प्रोसीजर्स रहेंगे। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इज ऑल अबाउट कि कैसे हाउ वी कम्युनिकेट द फाइनल how we communicate the final communication with our the engagement partner, how we monitor whether the assignments which we prepared, that the assignments which we schedule that are carried out according to the audit committee schedules or not, according to the audit plan which we made for the industry in the starting of the every financial year. We all know in the whoever in industry, we all know that we prepare a set of assignments, a set of risk areas which are important to look in the next financial year. So, before the starting of the financial year, we prepare that these are the areas that we have to look on. And for these areas, we require this kind of resources, this kind of special skills of the person which to whom we recruit. So these things are would be covered in the resource management. Next, we prepare policies and procedures कि क्या हमारी policies and procedure है, कैसे हमने communicate करना है, कैसे हमें documentation करना है records का, तो वो part हमारा policies and procedure में cover रहेगा। फिर हम पढ़ेंगे कि coordination and reliance। coordination and reliance क्या है कि कई बार होता है कि सारी assignments जो होती है वो केवल हमारा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं करता, हम एक्सटर्नल एजेंसीज को भी हायर करते हैं कि वो हमारे इधर इंटरनल ऑडिट करें। तो जो अगर मैं एक सीई हूँ एक इंडस्ट्री की, तो मुझे कैसे मैनेज करना है अपने इंटरनल पार्टनर को और एक्सटर्नल पार्टनर को, जो मैं इंटरनली करा रही हूँ या जो मैं एक्सटर्नली करा रही हूँ, उस चीज़ को के ऊपर इस स्टैंडर्ड के अंदर बात की गई है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर, जब हम एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ले रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है, वो हमें समझना है। और सबसे ज़रूरी काम हमें ये समझना है कि आईआईए का जो रोल है, वो नेचर ऑफ वर्क है, वो क्या है। सो दिस इज द ब्रीफ आई टेल यू। one by one we would take in a standard, and we will also determine ki what are the tips of the standard, what are the summarized content of the standards which we have to remember before going forward towards the exam. So now let us do the first standard, that is managing the internal audit activity. इसमें हमने क्या बात की है, इसमें क्या बोला, जैसे आप मेरी फर्स्ट लाइन देखेंगे यहाँ पर जो कि हाईलाइटेड है कि CAE must effectively manage IIA to ensure कि ये add value to the organization, कि ये value to the organization. We all know कि internal audit का purpose ही ये है कि इंटरनल ऑडिट हम क्यों करवाते हैं। इंटरनल ऑडिट क्या है कि हमें प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट्स करानी है, जहाँ पर हमें गैप्स हैं या जहाँ पे हमारे जो रिस्क एरियाज हैं उन एरियाज को हमें आइडेंटिफाई करके वहाँ पे हमें कंट्रोल्स लगाने हैं, जिससे कि क्या हो कि जिससे कि कोई फ्रॉड होने के चांसेस ना हो, ठीक है, जिसमें कोई गैप ना रह जाए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, उसके कंट्रोल्स को मजबूत करके हम क्या करते हैं कि हम फ्रॉड और इन चांसेस से उसको प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, यही तो है हमारे इंटरनल ऑडिट का पर्पस। तो सबसे पहले बस इस स्टैंडर्ड में हमें यही बात बोली गई है कि अब आपसे क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में कि हु हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी to manage internal audit activity to ensure it add values to the organization। तो ये क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, सीई है, सीईओ है,
या फिर इंटरनल ऑडिटर एक जगह ऑप्शन दे दिया जाएगा, या फिर एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर दे दिया जाएगा। तो हमें उसमें चूज़ करना है कि कौन सा जो है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सीए की है, चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव की है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक वर्ड हम पढ़ रहे हैं कि दैट इज अफेक्टिवली मैनेज। जैसे हम दो बातें समझते हैं, एफिशिएंट और अफेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर इफेक्टिव का मतलब क्या है, इफेक्टिव का मतलब क्या है, हमें पता है कि हमने इंटरनल ऑडिट चार्टर पढ़ा था पार्ट 1 में। इफ वी रिकॉल आवर मेमोरी, if we brainstorm ki what we studied in the part 2, so that is we have covered an internal audit charter. We covered that there is some 10 4 5 instances in there in the standards, that is demonstrate quality, ड्यू प्रोफेशनल केयर, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी कि जो हमारी 10 चीज़ें आ रही थी स्टैंडर्ड्स के अंदर भी 2-3 लाइन पॉइंट्स आ रहे थे। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की है, हमें वो नहीं करना है क्योंकि वो हमसे फिर से पार्ट 2 में नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए मैं उस पर इतनी डिटेल में नहीं जा रही हूँ। यहाँ पे हमें बस ये समझना है कि अगर हमें बोला गया है कि सीए को अफेक्टिवली मैनेज करना है टू आईआईई को, तो इंश्योर इट एडवेल, तो अफेक्टिवली कैसे मैनेज कर सकते हैं, अफेक्टिवली कैसे मैनेज कर सकते हैं जब आप अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आईआईए जो है कंफर्म कर रहा है विद द स्टैंडर्ड्स, इंडिविजुअल मेंबर कंफर्म कर रहा है विद द कोड ऑफ एथिक्स एंड द स्टैंडर्ड्स, क्योंकि आपको पता है कि जो इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर जो एक इंडिविजुअल मेंबर हमने हायर करा है, उसकी अपनी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कोड ऑफ एथिक्स में मिले। इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्रोफिशिएंट, वो इंडिविजुअल, हाँ हमने वहाँ पे दो चीज़ें पढ़ी थी अगर आपको याद आ रहा हो, कि कोड ऑफ एथिक्स जो कि इंडिविजुअल होता है, लेकिन प्रोफिशिएंट क्या होता है, प्रोफिशिएंट पूरी आईआईई एक्टिविटी को प्रोफिशिएंट बोला जाता है। ठीक है ना, ये दो बातें हाँ, अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत रिकॉल हो रहा हो तो वो ये चीज़ थी। फिर दूसरा यहाँ पर क्या है कि कंसीडरिंग ट्रेंडिंग इश्यूज दैट कुड इम्पैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम इफेक्टिवली मैनेज कैसे कर सकते हैं, अब हमने पढ़ा कि इफेक्टिवली कैसे मैनेज कर सकते हैं, कि हम अप टू डेट हो, इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी अप टू डेट हो कि हाँ ये इश्यूज हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। अब वो इश्यूज आपके इंटरनली भी हो सकते हैं, आपके इश्यूज जो है वो एक्सटर्नली भी हो सकते हैं। ठीक है, कि आपका कोई कॉम्पिटिटर आया है तो आपने उसके लिए आगे क्या किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, या फिर कोई दूसरी इंडस्ट्रीज में जो कि सेम काइंड ऑफ आप इंडस्ट्री है, दूसरी कंपनी में भी आपकी इंडस्ट्री में ही जो सेम कंपनी, उस कंपनी में ये फ्रॉड निकल कर आया है, क्या वो जो फ्रॉड का जो रीज़न था, वो जो कंट्रोल गैप था उस ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वो कंट्रोल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है या नहीं है। तो अगर आप अवेयर होंगे कि हाँ कि आपकी सेम काइंड ऑफ, आपकी इंडस्ट्री में जो सेम टाइप ऑफ कंपनी आपकी कॉम्पिटिटर है, उसमें अगर कुछ ऐसा फ्रॉड हुआ है या कोई ऐसा गैप मिला है जो कि आपकी कंपनी में भी हो सकता है उस तरीके का, क्योंकि आप एक सेम लेवल ऑफ, एक सेम नेचर ऑफ एक्टिविटी में काम कर रहे हो, तो उस केस में आपको भी अप टू डेट रहना चाहिए। अगर आप अप टू डेट होंगे तभी आप ये सब चीज़ें कंसिडर कर पाएंगे कि हाँ ये ट्रेंडिंग इश्यूज है जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर रहा है, तो उसको देखते हुए आप भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो है कंट्रोल बना पाएंगे। तो बस इसमें आपको 4 चीज़ें याद रखनी है, क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्जाम में। एक तो इस पूरे स्टैंडर्ड्स में से जो 2000 स्टैंडर्ड है, इसमें आपसे पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हु आर रिस्पॉन्सिबल टू इफेक्टिवली मैनेज द आईआईए। फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि कैसे एक इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी को आप मैनेज कर सकते हैं। तो इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए ये आपको जो 4 ग्रीन हाईलाइटेड पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये आपने इसमें रिमेंबर करने हैं कि यहाँ पर क्या है कि आप अचीव करें पर्पस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप अचीव करें पर्पस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनल ऑडिट चार्टर। जो इंटरनल ऑडिट चार्टर का जो पर्पस है या जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको अचीव करें। आप कंफर्म करें विद स्टैंडर्ड्स के साथ, इंडिविजुअल मेंबर्स जो है वो कोड ऑफ एथिक्स एंड स्टैंडर्ड्स के साथ आए, उसको कंफर्म करें और कंसीडर करें ट्रेंडिंग इश्यूज जो कि इम्पैक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड में केवल हमें इतना ही पढ़ना है और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, हर चीज़ यही बताई गई है, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा ब्रीफ नोट में जाने की ज़रूरत नहीं है कि पर्पस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो अपनी हर इंटरनल ऑडिट चार्टर की अलग अलग पर्पस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। एंड वी ऑल नो कि हमारे स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, इंडिविजुअल मेंबर्स ऑल्सो कंफर्म विद द कोड ऑफ एथिक्स एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो इस वे से हम इस
इतना कंसाइज करके अगर आप इतना पॉइंट याद रखेंगे तो आप 2000 स्टैंडर्ड में से जो है ज़रूर उस चीज़ को कवर करेंगे। सो नाउ नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, माय नेक्स्ट स्टैंडर्ड इज दैट इज रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या है। रिसोर्स मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि अपनी जो करंट असाइनमेंट्स हैं या अपनी फ्यूचर असाइनमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, हमें किस टाइप के रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें क्या स्किल्स चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए अपने रिसोर्स में। या केवल रिसोर्स का मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय से नहीं, ह्यूमन से नहीं है। इसमें यहाँ पे रिसोर्स का मतलब ये भी है कि हमें टेक्नोलॉजी वाइज क्या रिसोर्स की ज़रूरत है, हम कहाँ पर लैक हैं, तो वो सब चीज़ें भी हमें कंसिडर करना। मतलब अब हम यहाँ पे समझेंगे। अब इसमें 4 पॉइंट हमें समझने हैं इस रिसोर्स मैनेजमेंट स्टैंडर्ड से रिलेटेड। सबसे पहला तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ अ रिसोर्स। वी ऑल आस्क दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज़ अ रिसोर्स, व्हाट आर द थिंग्स जो कि कवर्ड है रिसोर्स के अंदर। दूसरा, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसोर्सेज। तो यहाँ पे किसको इंश्योर करना है कि इंटरनल ऑडिट रिसोर्सेज एप्रोप्रिशिएट हैं, सफिशिएंट हैं या इफेक्टिवली डिप्लॉयड है। तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम ब्रीफ आउट में समझेंगे कि एप्रोप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, या इफेक्टिवली डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखो, जो हमने पहले स्टैंडर्ड पढ़ा वो बहुत ब्रीफ था, उससे आपने उतना ही समझना है। ठीक है ना, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। अगर आप उतना कंटेंट समझेंगे तो ओके है। जब जहाँ जहाँ पे ब्रीफ आउट करने की ज़रूरत है या जहाँ पे कुछ समझाने की ज़रूरत है, यहाँ पे जहाँ पे कुछ है, कुछ डिफरेंट है जो कि हमें ज़रूर समझना चाहिए, या जहाँ पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ, तो इसलिए हम यहाँ पर अब रिसोर्स मैनेजमेंट में जो थोड़ा सा डिटेल्ड है, मैंने उसको डिटेल्ड ही कंसिडर किया है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि इसके अंदर क्या है। देखिए, रिसोर्स मैनेजमेंट, तो उसमें हमने सबसे पहले बात ये की कि हमारे रिसोर्सेज क्या है। यहाँ पे रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है। तो रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है? रिसोर्सेज कैन बी एम्प्लॉयज़, रिसोर्सेज कैन बी सर्विस प्रोवाइडर, कि मुझे अपना असाइनमेंट है, मुझे पता है कि मेरे 20 असाइनमेंट है जो कि मुझे इस फाइनेंशियल ईयर में करने हैं, मेरे ये बजट है, मेरा इंटरनल ऑडिट का बजट ये है, उसके अकॉर्डिंग जो है मैं इतने इंटरनल रिसोर्सेज ले सकती हूँ, या मुझे एक्सटर्नली सर्विस प्रोवाइडर में पे इतना खर्च सकती हूँ, या ये एरिया ऐसा जहाँ पर मेरे पास मैं वो स्किल्स के बंदा हायर नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए मुझे एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें रिसोर्स में आती है। ठीक है, एम्प्लॉयज़, सर्विस प्रोवाइडर्स, फाइनेंशियल सपोर्ट हमें कितना चाहिए, दैट इज़ फॉर बजट, कि हमें उसमें किस किस की मतलब हमें क्या अप्रूवल्स की ज़रूरत है, या फिर आईटी बेस्ड ऑडिट मेथड्स। ठीक है, तो वही मैं आपसे जैसे कि टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी थी कि अगर हमें कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ चाहिए तो वो इसके अंदर आएगा। तो अब हम एक एक करके ना इसका मतलब समझेंगे। आपने इसमें 3 चीज़ें बहुत याद रखनी है: एप्रोप्रिशिएट, सफिशिएंट एंड इफेक्टिवली डिप्लॉय। देखिए, एप्रोप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिशिएट का मतलब है मिक्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, नॉलेज, स्किल्स एंड अदर कॉम्पिटेंसीज जो कि नीडेड है टू परफॉर्म करने के लिए प्लान को। ठीक है, तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं या जो हमारे पास जो डिपार्टमेंट में हमारे पास रिसोर्सेज है वो ऐसे होने चाहिए जो कि ऐसे नहीं है कि अगर मेरी फील्ड है तो मैं अपने उसमें सारे इंटरनल ऑडिटर्स ही भर लूँ। ठीक है ना, जिनका बैकग्राउंड या जिनका एक्सपीरियंस जो है वो केवल इंटरनल का ही हो। ठीक है, मुझे चाहिए कि हाँ, किसी के पास जो है डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड नॉलेज भी हो, या मुझे किसी को चाहिए किसी के पास इंटरनल, किसी के पास इनडायरेक्ट टैक्स रिलेटेड नॉलेज भी हो, कोई फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हो, अकाउंटेंट का उसके पास। सॉरी, द नेटवर्क इशू। सो हम कहाँ थे? हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर एप्रोप्रिशिएट का मतलब क्या है कि जहाँ पर हमारे नॉलेज, स्किल्स एंड अदर कॉम्पिटेंसीज का जो है हमें मिक्स मिले। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बात आती है कि ठीक है, नॉलेज, स्किल्स हम देख लेंगे, हमें कैसे पता चल जाएगा कि आप जब अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में देखेंगे या आपका जब हम इंटरव्यू लेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा
कि आप में कितनी नॉलेज है, क्योंकि जब हम बात करते हैं या हम अपना एक्सपीरियंस दिखाते हैं तो उस एक्सपीरियंस अकॉर्डिंगली ही हम अपने इंटरव्यू में हम जज कर हो जाते हैं। तो इंटरव्यूअर से हम जज हो जाते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा उसने बोला कि अदर कॉम्पिटेंसीज हमें कैसे पता चलेगी, अदर कॉम्पिटेंसीज हमें कैसे पता चलेगी कि सीए जो है वो मे कंडक्ट अ स्किल असेसमेंट बेस्ड ऑन द नीड्स आइडेंटिफाइड इन द रिस्क असेसमेंट देन ऑडिट प्लान। कि सीए जो है वो क्या कंडक्ट कर सकता है, स्किल असेसमेंट कंडक्ट कर सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है, या आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास जो है कॉम्पिटेंट है हमारा इंटरनल ऑडिट स्टाफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि सीएई जो है कंडक्ट कर सकता है एक स्किल असेसमेंट। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि किस तरीके से आप जो है ये इंश्योर कर सकते हो कि कॉम्पिटेंसीज ऑफ द इंटरनल ऑडिट स्टाफ। तो उसमें क्या है कि सीएई में कंडक्ट अ सेल्फ असेसमेंट। तो कैसे पता चल सकता है, यहाँ पे जो आपको पॉइंट जो इसका आंसर याद रखना है वो क्या है, स्किल असेसमेंट। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है एक, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, इसमें हमें हर जगह फैक्टर्स याद रखने हैं। कि जैसे एक है कि अप्रोप्रिशिएट का मतलब हमें समझ में आ गया कि हाँ भाई मिक्स ऑफ नॉलेज स्किल्स एंड अदर कॉम्पिटेंसीज नीडेड टू परफॉर्म द प्लान। तो लेकिन ये अप्रोप्रिशिएट है या नहीं, ये किस बात पर फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, ये किस बात पर फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। आप खुद सोचेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर आप खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि अप्रोप्रिशिएट है या नहीं, हमें किस पता है, हमें पता है कि हमारी इस टाइप की इंगेजमेंट है, मेरी इस टाइप की इंगेजमेंट है, मुझे इस टाइप की इंगेजमेंट में इस काइंड ऑफ रिसोर्सेज की ज़रूरत है, इस काइंड ऑफ स्किल्स की ज़रूरत है। तो यानी पहला जो मुझे चीज़ इस फैक्टर में कंसिडर करनी है वो क्या है कि मेरी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंगेजमेंट क्या है, कि मेरा इंगेजमेंट कितना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, फिर मुझे जानना है कि मुझे इस एंगेजमेंट में मेरे क्लाइंट को इतना एक्सपीरियंस चाहिए है ऑडिटर्स का, मेरे रिसोर्स का इतना एक्सपीरियंस है। मैं खुद भी जानती हूँ कि मैं बिल्कुल फ्रेशर को इस असाइनमेंट पे नहीं रख सकती हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस तो उसका चाहिए ही होगा। ठीक है, मुझे ये देखना होगा कि ट्रेनिंग में कितनी दे पाऊँगी उस चीज़ को के लिए, क्योंकि मैं अगर कोई रिसोर्सेज हायर कर रही हूँ तो मुझे अपना बजट भी देखना है कि मेरा बजट इतना है कि क्या मैं इसको इतनी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर पाऊँगी। कि अगर बिल्कुल ही अगर मैं कोई फ्रेशर स्टेज से ले रही हूँ और मुझे चाहिए था कि हाँ चलो 5 साल का एक्सपीरियंस हो, लेकिन चलो मैं फिर भी 4 साल वाले को ले लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो कुछ ट्रेनिंग के बाद वो उस 5 साल के लेवल तक पहुँच जाएगा, लेकिन मैं बिल्कुल उस चीज़ में फ्रेशर तक पे नहीं जा सकती हूँ। दूसरा कि एप्रोप्रिएट ऑडिट स्टाफ मेरे इस बात पे भी डिपेंड करता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, अब इस बात को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे क्या होता है, जैसे आपकी एक इंगेजमेंट है। ठीक है, ठीक है, या फिर आप इंगेजमेंट बोल सकते हो, या फिर जैसे आप बोल सकते हो कि हमारा एक असाइनमेंट है जो हमारे को करना है। ठीक है, तो इस असाइनमेंट में मुझे पता है कि मुझे कौन कौन से फैक्टर्स की ज़रूरत होगी, कि कितना कॉम्प्लेक्स है ये इंगेजमेंट। ठीक है, पहले चीज़ क्या होगी कि कितना जो है कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, मुझे पता है कि इस असाइनमेंट में मुझे क्या है, सपोज कीजिए मुझे इस असाइनमेंट में जैसे कि इंडेक्स का कोई असाइनमेंट करना है, तो मुझे पता है कि जो मेरे पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। ठीक है, आप यहाँ पे समझिए कि जैसे मुझे कोई इंडेक्स का असाइनमेंट करना है, और मुझे पता है कि मेरे पास 5 रिसोर्सेज हैं, और 5 रिसोर्सेज में से जो मेरे 3 रिसोर्सेज हैं उनके पास तो इंटरनल ऑडिट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और 2 के पास जो है डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि इंडायरेक्ट इसमें अभी भी नए आए हैं। ठीक है, तो इसमें मुझे थोड़ा डीप डाउन जाने की ज़रूरत है, तो मेरे को चाहिए कि मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज किस टाइप के हैं, मैं उसके बेसिस पे डिसाइड करूँगी कि हाँ मुझे अब जो है इस फील्ड का भी रिसोर्स ज़रूरत है। ठीक है, फिर मैं देखूँगी कि मेरा इंगेजमेंट कितना कॉम्प्लेक्स है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है।
मैं ये देखूंगी कि मेरे को एक्सपीरियंस ऑफ द ऑडिटर्स कितना चाहिए, कि उस असाइनमेंट को करने के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या देखूंगी कि भाई मुझे ट्रेनिंग की कितनी ज़रूरत है, कि मैंने अगर कुछ हायर करे हैं तो उसके पास कितना ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और अब आगे मुझे कितनी ट्रेनिंग देने की उसमें नीड है। ठीक है, तो यानी फैक्टर्स वाइल सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट ऑडिट स्टाफ, अगर आप इस तरह से इसको बार बार सुनेंगे तो आपको ये ज़रूर याद हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि हमें एक अप्रोप्रिएट ऑडिट स्टाफ हो। तो वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंगेजमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, कि हमारे पास किस टाइप के रिसोर्सेज हैं, ट्रेनिंग तो हमें ज़रूरी नहीं है देने की, और एक्सपीरियंस लेवल क्या है ऑडिटर्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी चीज़ थी, हमने क्या पढ़ा था कि एप्रोप्रिएट, सफिशिएंट एंड अदर कॉम्पिटेंसीज नीडेड टू परफॉर्म द प्लान। अदर कॉम्पिटेंसीज कैसे हो सकती है? स्किल असेसमेंट टेस्ट से हो सकती है। एप्रोप्रिएट के लिए हमने फैक्टर्स पढ़ लिए। सफिशिएंट, सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? सफिशिएंट जैसे कि वर्ड से आप समझ रहे हैं, दैट इज रेफर टू द क्वांटम ऑफ द रिसोर्सेज, कि मेरे पास कितनी क्वांटिटी है। क्या क्वांटिटी मैटर करती है? क्वांटिटी भी कभी क्वांटिटी भी मैटर करती है, लेकिन क्वालिटी भी मैटर करती है साथ में। तो उसी के लिए हमने, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब मैं रिसोर्स प्लानिंग की बात करी थी, कि रिसोर्स प्लानिंग में मैं क्या देखूंगी कि मुझे पता है कि मेरे इस ईयर में इतने ऑडिट जो है, इतने असाइनमेंट्स हैं, तो मुझे इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं आज बैठी हूँ, मुझे पता है कि मेरे जो फर्स्ट 6 मंथ्स में, फर्स्ट 6 मंथ मेरे करके चलूंगी। ठीक है, तो मैं अपनी रिसोर्स प्लानिंग जो है उस अकॉर्डिंग करके चलूंगी। तो यही इसमें बोला गया है कि अगर आप सफिशिएंसी के फैक्टर्स देखेंगे, तो अगर आप सफिशिएंसी के फैक्टर्स देखेंगे तो उसके अंदर यही है कि जैसे क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज नीडेड टू अकम्प्लिश द प्लान, तो इसमें क्या फैक्टर्स हैं टू डिटरमाइन करने के लिए सफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। दैट इज कम्युनिकेशन, जो कि रिसीव्ड हुई फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड बोर्ड, information about the ongoing and the new engagements, consequences of not completing an engagement on time, and knowledge, skills and competencies of the internal audit स्टाफ। ठीक है, तो यानी ये हमारे सफिशिएंट पे होंगे कि सफिशिएंट, जो कि हमें फैक्टर्स डिटरमाइन सफिशिएंट रिसोर्स एलोकेट है या नहीं। तो उसमें हमें क्या क्या देखना है कि भाई मेरे ऑनगोइंग इंगेजमेंट्स कितने हैं और जो मेरे फ्यूचर इंगेजमेंट्स कितने आने वाले हैं, या मुझे क्या कम्युनिकेशन रिसीव हो रखी है मैनेजमेंट एंड बोर्ड, या मेरे इतने रिसोर्सेज जो है होने चाहिए। फिर उसके बाद होता है कि ये और क्या है कि कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉट कंप्लीटिंग एन एंगेजमेंट और टाइम, कि मुझे ये भी देखना है कि अगर मैं एंगेजमेंट टाइम पे कंप्लीट नहीं करती हूँ तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकती है। तो हमारे जो 4 फैक्टर्स हो जाएंगे यहाँ पर, वो हो जाएंगे कि कम्युनिकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड बोर्ड, information about ongoing and new engagements, consequences of not completing an engagement on time, knowledge, skills and competencies of internal audit staff। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एफिशिएंटली डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है। जो हमारे पास नेक्स्ट है एफिशिएंटली डिप्लॉयड, तो एफिशिएंटली डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है कि एफिशिएंटली डिप्लॉयड का मतलब इट नीड्स प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग। तो हमारे जो फैक्टर्स हैं जो हमारे रिसोर्स प्लानिंग में हमें कंसीडर करने हैं एफिशिएंटली डिप्लॉयड में, दैट इज ऑडिट यूनिवर्स, relevant risk levels, internal audit plan, coverage expectation, and estimation of unanticipated activities। and estimation of unanticipated activities जो कि unpredicted activities हैं, उसका estimation। ठीक है, तो यानी effectively deployed है या नहीं, तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि हमारा relevant risk levels क्या है, कि कोई ऐसा मतलब हमारे रिस्क लेवल्स डिफाइन होते हैं कि हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और द लो रिस्क। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि मेरे पास 20 रिसोर्सेज हैं टोटल, जिसमें मैंने लो रिस्क में तो 5 रख रखी हैं। ठीक है, मैंने मीडियम रिस्क में जो है 15 रख, मैंने 13 रख रखी हैं, 18 हो गई, और मैंने हाई रिस्क में केवल 2 ही रख रखी हैं। तो ये अफेक्टिवली डिप्लॉयड नहीं होंगी। ठीक है, तो यानी ये हमें यहाँ पे समझना क्या है कि अफेक्टिवली डिप्लॉयड कब होंगी, कि जब मैं अपने रिस्क लेवल के अकॉर्डिंगली जो है रिसोर्सेज को मैंने डिप्लॉय कर रखा है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ क्या होगी कि कवरेज एक्सपेक्टेशंस,
कि अगर कुछ असाइनमेंट, एक तो रिस्क लेवल पर हम देख सकते हैं अपना डिप्लॉयमेंट का, दूसरा हम कैसे देख सकते हैं, दूसरा देख सकते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है। कि जैसे हमें पता है कि हमारे पास 5 असाइनमेंट है अभी मुझे, जो कि 1 महीने में करनी है। इसमें से मेरी ये 2 प्रायोरिटी वाली हैं, 3 वो है, लेकिन मेरे ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं वो 3 में जो कि लेस प्रायोरिटी वाली है, या जिनको थोड़ा टाइम मतलब हम दे सकते हैं, उसके लिए वेट कर सकते हैं, उसमें लगा रखा है, लेकिन 2 में मैंने नहीं लगा रखा है। तो वो क्या हो जाएगा, कवरेज एक्सपेक्टेशन। एक एस्टिमेशन ऑफ अनएंटिसिपेटेड एक्टिविटीज़, की कोई अगर अनप्रिडिक्टेड एक्टिविटी, सपोज करो कि जैसे 5 ही लोग हैं कि एक असाइनमेंट पे, ठीक है, लेकिन अब होता क्या है कि उन पाँचों की ज़रूरत बहुत है, हमें उन पाँचों का ही होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन होता क्या है कि मैंने कुछ बैकअप ऑप्शन नहीं रख रखा है उस केस में, कि अगर वो बहुत ज़रूरी है कि उसमें पाँचों का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैंने अगर कोई बैकअप ऑप्शन नहीं रखा है, तो उसको भी हमें ध्यान रखना है इफेक्टिवली डिप्लॉय में। फिर जो लास्ट है वो है हमारा कि इंटरनल ऑडिट प्लान इन द ऑडिट यूनिवर्स। तो दिस इज इफेक्टिवली डिप्लॉय। तो आपको इनमें फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं जो कि याद रखने हैं, इसलिए मैंने ये फैक्टर्स को बहुत कंसाइज मैनर में यहाँ पे रखा है। कि अगर हम अप्रोप्रिएट ऑडिट स्टाफ की बात कर रहे हैं तो हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंगेजमेंट, एक्सपीरियंस लेवल ऑफ द ऑडिटर्स, ट्रेनिंग नीड्स ऑफ द ऑडिटर एंड द अवेलेबल रिसोर्सेज। इसी तरह से सफिशिएंट जो कि हम सफिशिएंट से हम क्या समझते हैं, क्वांटम ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन उसके अंदर हमें क्या फैक्टर्स को कंसिडर करना है कि हमारे ऑनगोइंग और जो अभी की इंगेजमेंट्स है वो क्या है, मुझे क्या कम्युनिकेशंस जो है बोर्ड से मिली है। अब हम सफिशिएंट के लिए और हमारा क्या पॉइंट होगा कि कंसिक्वेंसेस क्या है, कि अगर हमने कोई इंगेजमेंट टाइम पे नहीं की, नॉलेज स्किल्स एंड competencies ऑफ द इंटरनल ऑडिट स्टाफ। और इसी तरह से हमारा इफेक्टिवली डिप्लॉय के लिए हमारे पास फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इफेक्टिवली डिप्लॉय के लिए ऑडिट यूनिवर्स, रेलिवेंट रिस्क लेवल, इंटरनल ऑडिट प्लान, कवरेज एक्सपेक्टेशन और एक एस्टिमेशन ऑफ अनएंटिसिपेटेड एक्टिविटीज। और ऑडिट यूनिवर्स का मतलब क्या है, ऑडिट यूनिवर्स का मतलब हम 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद समझेंगे कि ऑडिट यूनिवर्स क्या होता है। ये अभी बहुत सारा कैप्चर हो गया एक साथ, सो जस्ट टेक 5 मिनट्स ब्रेक। ओके, सो हमने अभी बात की रिसोर्स मैनेजमेंट की। तो रिसोर्स मैनेजमेंट में मैंने 3 चीज़ें आपको रिमाइंड कराई, दैट इज एप्रोप्रिएट, सफिशिएंट एंड इफेक्टिवली डिप्लॉयड। वी स्टडीड द फैक्टर्स बिहाइंड दैट, कि हमें क्या फैक्टर्स जो है एप्रोप्रिएट ऑडिट स्टाफ के लिए लेने हैं। ये आपको टिप्स पे याद होने चाहिए कि ये फैक्टर्स क्या है, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द engagement, experience level of the auditors, training needs of the auditors and the available resources। इसी तरह से सफिशिएंट कब होंगे, जब सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि सफिशिएंट कब होंगे। सफिशिएंट जब आपकी इंफॉर्मेशन हो
about ongoing and new engagements, communications received from management and board, consequences of not completing an engagement on time, and knowledge, skills, and competencies of the internal audit staff. So now moving forward to the next standard. Next standard is very small, not big. So that is 2040 policies and policy procedures. इसमें हमें क्या बोला है कि सीए को क्या करना चाहिए, स्टेब्लिश करनी चाहिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू गाइड द इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी। अब ये जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होते हैं किस पर डिपेंड करते हैं, हमारे साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इट्स work. So dear friends, today we will only cover the three standards, that is 2000, 230 and 2040. In the next video we will cover the remaining three. So uh, it in this way you also remember very quickly. So now next is policies and procedures. तो देखिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में हमने बात की थी कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में क्या होगा कि जैसे हमें कैसे मॉनिटरिंग करनी है, कैसे हमारा कम्युनिकेशन का पैटर्न होना चाहिए, या हमें कैसे रिटेंशन करनी है रिकॉर्ड्स की, वो सब बात हमारे को 2040 यानी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में पता चलेगी। अब इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बनेगा वो ये बनेगा कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर स्टेब्लिश करने की, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीए की है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि ये जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं ये किस बात पर डिपेंड करते हैं, आपके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं। देखिए आप देखेंगे ये जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आपको प्रॉपरली उनकी डॉक्यूमेंटेड एसओपीज मिलती है, लेकिन अगर आप छोटी ऑर्गेनाइजेशंस पे जाएंगे तो वहाँ पे एसओपीज जो है जनरली डॉक्यूमेंटेड नहीं होती है। ठीक है, हो सकती है कि वो कर आपके सिस्टम में पड़ी हो, ठीक है, या फिर स्कैटर्ड मैनर में आपको मिलती है कि कुछ चीज़ें जो कि डॉक्यूमेंटेड होती हैं, कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंटेड नहीं होती हैं। तो ऐसा जो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, लेस मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो थर्ड क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मैच्योर इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी है तो वहाँ पर हमारे जो ऑपरेशन हैं वो फॉर्मल होते हैं, वो आपको प्रॉपरली जो है डॉक्यूमेंटेड मिलते हैं। अगर आईए स्मॉल और लेस मैच्योर है तो वहाँ पर जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या होंगे वो इनफॉर्मल वे में होते हैं, और इसका मतलब क्या है कि इट में रिसाइड इन सेपरेट डॉक्यूमेंट्स या फिर वही ऑडिट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में होंगे। तो पॉलिसीज किस पर होती है, पॉलिसीज जो कि रिटेंशन ऑफ इंटरनल ऑडिट रिकॉर्ड्स, ठीक है, हमारी इथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है कि जो हमारे हम जो रिसोर्सेज एम्प्लॉयड किए हैं उन्हें क्या इथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है, मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, independence of the internal audit activity and objectivity of the internal auditors, purpose and responsibility of the IIA, compliance with the मैंडेटरी गाइडेंस। तो ये सब चीज़ें पॉलिसीज में कवर्ड होती है। ऐसी प्रोसीजर्स कि आपको कैसे ऑडिट प्लान ड्राफ्ट करना है, या आपने कैसे कम्युनिकेशन करना है अपने रिजल्ट्स ऑफ एंगेजमेंट को, कैसे आपका मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप होगा, परफॉर्मेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन करना एंगेजमेंट्स की, ड्राफ्टिंग प्लान्स एंड प्रोग्राम्स फॉर स्पेसिफिक एंगेजमेंट्स। तो ये सब चीज़ें हमारी किस में होती है, प्रोसीजर्स में कवर होती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि एक एग्जांपल देके चलो बताओ कि रिटेंशन ऑफ इंटरनल ऑडिट रिकॉर्ड पॉलिसी है या प्रोसीजर है। तो देखो पॉलिसी है रिटेंशन, क्योंकि रिटेंशन करना है, कितने पीरियड के लिए करना है ये हमारा पॉलिसी डिफाइन करेगा, लेकिन प्रोसीजर क्या डिफाइन करेगा कि हाउ टू डॉक्यूमेंट इट। ठीक है ना, तो वहाँ पर हम क्या बात करते हैं कि परफॉर्मेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंगेजमेंट की बात करते हैं। हम जब कुछ परफॉर्म करें तो वहाँ पर प्रोसीजर्स आते हैं। प्रोसीजर्स कहाँ पर चाहिए होते हैं, जब हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। पॉलिसीज की हाँ इस तरीके से हमें इस चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, तो यानी पॉलिसीज क्या हो गई, हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट हो गई, हमारा रिटेंशन ऑफ इंटरनल ऑडिट रिकॉर्ड्स हो गया, हमारा मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी इंफॉर्मेशन है, या इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स है, पर्पस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी, कंप्लायंस एंड मैंडेटरी गाइडेंस। इसी तरह से प्रोसीजर्स क्या है कि हमें ड्राफ्ट करना है ऑडिट प्लान, कम्युनिकेशन एंड फॉलोअप कैसे करना है, परफॉर्मेंस एंड
डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है एंगेजमेंट्स का, ड्राफ्टिंग प्लान एंड वर्क प्रोग्राम्स क्या है फॉर स्पेसिफिक एंगेजमेंट। फिर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन इस स्टैंडर्ड से बनता है कि आपके जो पॉलिसीज हैं प्रोसीजर्स हैं उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी रिव्यू करने की। तो उसकी फ्रिक्वेंसी है कि हमें पैरिडिकली रिव्यू करना है, और रिव्यू कौन करेगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि तो कौन रिव्यू करेगा, सीएई करेगा, क्योंकि सीएई को ही स्टेब्लिश करनी होती है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। हमने पहले ही बात की थी कि किसको स्टेब्लिश करनी होती है, सीएई को स्टेब्लिश करनी होती है। और अगर इंटरनल ऑडिट मैनेजर करेगा, अगर उसको साइन की गई है जो मॉनिटर इंटरनल ऑडिट प्रोसेसेस, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि सीए ना हो तो वहाँ पर इंटरनल ऑडिट मैनेजर करेगा। ऐसे जनरली हम जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम सीए की बात करते हैं। ठीक है, सो डियर माय फ्रेंड्स, हमने आज 3 स्टैंडर्ड्स कवर हैं। आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहा जिसकी वजह से बार बार वीडियो ऑन ऑफ हो रही थी, तो उसके लिए आई एम सॉरी। We will cover the next 3 videos, the next 3 standards in the next in next our video. So in this video, you watch this video and remind these highlighted points in your mind before. सो बिफोर गोइंग टू द एग्ज़ाम आप ये टिप्स याद रखें कि जो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं कि, और इससे आपको याद रिमेंबर करने में भी ईजी होगा। तो अगर मैं आपको एक बार फिर से समराइज़ करूँ तो जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा 2000, जहाँ पे हम बात करते हैं मैनेजिंग द इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी। तो मैनेजिंग द इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, सीएई। सीए को कैसे मैनेज करना है, अफेक्टिवली मैनेज करना है। अफेक्टिवली वो कैसे मैनेज करेगा, जब इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी कंफर्म हो विद द स्टैंडर्ड्स, जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं वो कंफर्म करें विद द एथिक्स एंड द स्टैंडर्ड्स। हमें पता हो कि हमारी इंडस्ट्री है तो हमारी टाइप की जो दूसरी हमारी टाइप की ही इंडस्ट्रीज में जो दूसरी कंपनीज हैं उसमें ये इश्यूज आया है, उसमें ये फ्रॉड हुआ है, तो उसमें जो कंट्रोल की रिक्वायरमेंट थी वो हमारे इधर भी है या नहीं। तो हमारे को ट्रेंडिंग इश्यूज याद रखना है। ठीक है, और हमें क्या रखना है कि पर्पस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द इंटरनल ऑडिट चार्टर। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट स्टैंडर्ड कवर हो जाएगा। दूसरे स्टैंडर्ड की बात करें तो दूसरा स्टैंडर्ड क्या बोलता है, रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट में हमें क्या याद रखना है कि सीए की ड्यूटी है कि उसे रिसोर्स मैनेजमेंट कि उसे इंश्योर करना है कि इंटरनल ऑडिट रिसोर्सेज कैसे हो। 3 पॉइंट्स क्या है कि अप्रोप्रिशिएट हो, effectively deployed हो एंड सफिशिएंट हो। अप्रोप्रिशिएट का मतलब क्या है कि मिक्स ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड अदर कॉम्पिटेंसीज। अदर कॉम्पिटेंसीज कैसे डिटरमाइन होंगी, स्किल असेसमेंट से डिटरमाइन होंगी। फिर दूसरा होता है नॉलेज एंड स्किल्स, वो कैसे डिटरमाइन होंगी, वो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन से डिटरमाइन होगी। ठीक है, फिर हमारा जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन देंगे, अपना रिज्यूमे देंगे, सीवी देंगे, इंटरव्यू को देंगे, तो वहाँ से नॉलेज एंड स्किल्स हो जाएगी, और जो अदर कॉम्पिटेंसीज है वहाँ की स्किल असेसमेंट टेस्ट से डिटरमाइन होगी, जो कि सीए कंडक्ट कर सकता है। दूसरी बात हमने क्या की कि अप्रोप्रिशिएट के लिए हमारे पास कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो अप्रोप्रिशिएट है या नहीं वो किस बात पे जो है डिपेंड करता है। तो हमारा किस बात पे डिपेंड करता है अप्रोप्रिशिएट है या नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है हमारी इंगेजमेंट की, हमारा एक्सपीरियंस लेवल ऑफ द ऑडिटर्स क्या है, ट्रेनिंग नीड्स की क्या ज़रूरत है ऑडिटर्स की, और हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं। इसी तरह से हमने बात की सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब है क्वांटम। सफिशिएंट कब होगा, जब मुझे देखना है कि मेरे ऑनगोइंग और जो मेरे करंट इंगेजमेंट्स हैं वो कितने हैं, मेरे को क्या कम्युनिकेशन रिसीव हुई है फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड द बोर्ड, मेरे पास क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर मैं इस इंगेजमेंट को टाइमली कंप्लीट ना करूँ, इस बात पे डिपेंड करेगा। एंड नॉलेज, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज क्या है इंटरनल ऑडिट स्टाफ की, तो इस बात पे डिपेंड करेगा। अफेक्टिवली डिप्लॉयड है या नहीं, तो वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि मेरे को पता है कि मेरे ये रिस्क लेवल्स हैं, तो मुझे जिस जो रिस्क लेवल्स है कि हाई, मीडियम, लो, मुझे उसके बेसिस पर देखना है कि मैं रिसोर्सेज वहाँ वहाँ एम्प्लॉय करूँ। फिर मेरी कवरेज एक्सपेक्टेशन, एक एस्टिमेशन ऑफ अनएंटिसिपेटेड एक्टिविटीज़, रेलेवेंट रिस्क लेवल्स, तो इस बात पे डिपेंड करेगा अफेक्टिवली डिप्लॉय। नेक्स्ट स्टैंडर्ड हमने पढ़ा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, दैट इज 2040। तो 2040 में हमारा था पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स किस बात पर डिपेंड करते हैं, हमारे साइज एंड स्ट्रक्चर पर ऑफ द इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्क। ठीक है, तो साइज, तो जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पर क्या होगा, हमारा जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर क्या होगा कि हमारे फॉर्मल ऑपरेशंस होंगे, और जो वहाँ पर होगा वहाँ पर थोड़ा हमें स्कैटर्ड मिल सकता है कि कुछ जो है ऑडिट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स में हो, जो कुछ जो है हमारा डॉक्यूमेंटेड हो। तो वहाँ पर हमने बात की कि पॉलिसीज से हम क्या समझते हैं और प्रोसीजर से हम क्या समझते हैं। तो पॉलिसीज जो कि टॉक्स अबाउट द रिटेंशन ऑफ इंटरनल ऑडिट रिकॉर्ड,
ethic requirement, maintaining the confidentiality of information, independence of the IAEA, objectivity of internal auditors, purpose and responsibility of IAEA, compliance with mandatory guidelines. Then procedure जो कि हमारी communication and follow up, हमें कैसे documentation को रखना है, हमें कैसे audit plan बनाना है, drafting plan and work program फॉर स्पेसिफिक एंगेजमेंट। फिर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन इसमें बनेगा वो क्या बनेगा कि हमें रिव्यू कौन करेगा और रिव्यू की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। तो रिव्यू कौन करेगा, सीए करेगा, अगर इंटरनल ऑडिट मैनेजर को असाइन है तो वो करेगा, और हमें पेरियोडिकली ही इसको रिव्यू करना है। So dear friends, we will cover the next 3 standards in the next video. Thank you and best of luck.